পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার পর ভারতীয় বায়ুসেনার পাল্টা প্রত্যাঘাত। এরপর থেকে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে চরমে উঠেছে উত্তেজনা। এই পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে বোঝাপড়া হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যেই বোঝাপড়া হয়েছে। এরই মধ্যে ফোনে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্সের। ভারত পাক সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মোদী। সূত্রে খবর, ভারতের আগে পাকিস্তানি শত্রুতা শেষ করার আশ্বাস দিয়েছিল। এরপরই মোদীকে ফোন করেন জেডি ভান্স। নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদন সূত্রে খবর, ভারত পাকিস্তান সংঘাত ইস্যুতে শনিবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা হয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর। সেখানে মোদীর দাবি, কাশ্মীর নিয়ে আমাদের অবস্থান একেবারে স্পষ্ট। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে একটাই পথ রয়েছে, তা হলো পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়া। এটা ছাড়া আলোচনার আর কোনো পথ নেই। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, তারা জঙ্গিদের আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলে। সেই নিরিখে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারি। এটা ছাড়া আমাদের আর কোনো বক্তব্য নেই। এই ইস্যুতে কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি না। শনিবার পাকিস্তানের আর্জিতে সংঘর্ষ বিরতির পথে হাঁটে ভারত। আগ বাড়িয়ে আমেরিকা আবার দাবি করে সেই মধ্যস্থতায় হাত রয়েছে তাদের। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তানি সেনা। এই নিয়ে পারদ চড়ছে। ये कहने का तरीका होता है कि अब आपको जम के इसका जवाब देना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो गोली मारेंगे। आपको जितना जो आपको रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी करिए। कई बार ये होता है कि गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ता है। गोला जो होता है एरिया वेपन होता है वो ये एक कहने का तरीका है कि आप अपना खुल के अब बेधड़क होके करिए, ये मतलब है। तो गोली का जवाब गोले से ये वेपन को कंपेयर करने वाला नहीं है। इसमें इसका यही मतलब है कि आप पूरी की पूरी जान लगा, जैसे आप चाहते हैं, जो आप जिस तरीके से चाहते हैं अपना वेपन का इस्तेमाल करिए। और वेपन का इस्तेमाल करना ये कमांडर पे डिपेंड करता है। कमांडर का होता है वो कौन सा वेपन कहाँ लगेगा, वो उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। एक बार मेरे को कह दिया आप अटैक करिए, अब मैं उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर करूं या उसके ऊपर मैं पिनाका लगाऊं, MBRL लगाऊं या उसके ऊपर मैं आर्टिलरी से फायर करूं या अटैक हेलीकॉप्टर मेरे पास है, उसकी जरूरत है, तो फिर मेरे को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। একদিকে সেনাকে ফ্রি হ্যান্ড দিয়ে গুলির বদলে গোলা ছোড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মোদী। পাশাপাশি আবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টকে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে ফেরানো হলেই আলোচনা হতে পারে। আর এই ইস্যুতে কারোর কোনো মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। এদিকে পাক সেনার গুলিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জম্মু কাশ্মীরের আখনুরের বাসিন্দারা। মাথার উপরে থাকা ছাদটুকুও ভেঙে পড়েছে। বর্ডারে জওয়ানদের সঙ্গে লড়াই করতে না পারলে সাধারণ মানুষকে মারার কোনো অধিকার নেই পাকিস্তানের। এভাবে সাধারণ মানুষকে নিশানা করতে থাকলে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দেব, হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তারা। पाकिस्तान द्वारा जो सिविलियन पर फायर किया गया है, मैं पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते हो तो सिविल को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो सिविल जनता बॉर्डर पे बैठी गरीब जनता के घर उजाड़ रहा है, ये पाकिस्तान को सीधा मैसेज है, लड़ना है तो हमारे बॉर्डर के सिपाहियों के साथ लड़ो, लेकिन सिविल को मत मारो। ठीक है, अगर सिविल को मारोगे
तो आपका नामो निशान नक्शे से मिटा देंगे पाकिस्तान को। পাকিস্তান বিন্দু মাত্র বিশ্বাসের যোগ্য নয়। সাপকে বিশ্বাস করার আগে বেশ্যাকে বিশ্বাস করুন, বেশ্যাকে বিশ্বাস করার আগে পাকিস্তানকে বিশ্বাস করুন। এভাবেই পাকিস্তানকে তোপ দাগলেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ তথা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিডি বক্সি। हम मुंह तोड़ हमला करेंगे। यू अंडरस्टैंड? ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा है खत्म हो गया? हु सेड इट इज ओवर? ठीक है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं कोट करता हूं एक अफगान प्रोवर्ब, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ हार्लट, ट्रस्ट अ हार्लट बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। ओके, मतलब कहने का हिंदी में अनुवाद भी कर दूं मैं, एक सांप को विश्वास करने के पहले एक वेश्या का विश्वास करो, वेश्या का विश्वास करने के पहले एक पाकिस्तानी का विश्वास करो। अब समझे? पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। अगर वो एक झलक दिखाना चाहता है कि मैं मार खा के भी मुस्कुरा रहा हूं, और उसके जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मुझे यकीन है कि नेशन को बड़ा हर्ष हुआ होगा सुनकर उनके मुखारविंद से, ठीक है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं यार। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौला, ठीक है। और तुमको हमने रहम खा के ऑफ रैंप दिया, चलो ठीक है, मान लिया सीज फायर। आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई, तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी, और सारे, कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई, पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी, मार खाई है, पिटी है, बेशरम लोग, वाहियात लोग। कोई और होता तो चुप हो जाता। तुम 2 दिन की विस्की पीने की आदत है ये मुल्ला मुनीर को, जैसे याह्या खान को थी, उसने विस्की पीकर पाकिस्तान को मरवा दिया था। जब पाकिस्तान हार रहा था, 93,000 कैदी सरेंडर कर रहे थे, तो वो दारू पी के बोल रहा था मैं लड़े जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। अबे विस्की पीनी बंद कर बे, मुल्ला बनता है तो विस्की मत पीना, विस्की पी के मत बोल अनाप शनाप, और अपने गुर्गों को, कुत्तों को बोल दे कि झंडे लेके ना घूमे, नहीं तो मार खाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। तुमने अपनी एयरफोर्स को तो पिटवा दिया है। हम बिल्कुल, देखिए, जब लड़ाई होती है तो पहले एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, वो हमने कर ली है। उसके बाद ग्राउंड और नेवल एक्शन शुरू होता है। अब तुम मौत बुलाना चाहते हो तो बुला लो। तुमने बोला कि साहब छोड़ दो, बख्श दो, ये करो वो करो, उसके पांव पकड़े, सऊदी अरेबिया के पांव पकड़े। अब तुमको जब साला मोहलत दी जाए तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। असलियत तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। नाटक मत कर, पाइप डाउन पाकिस्तान, पाइप डाउन, शट अप। बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करवाओ, ठीक है। तुम्हारे आवाम पे रहम खा के हमारे प्रधानमंत्री ने तुमको छूट दी है कि ठीक है साहब अभी भी चले जाओ, लेकिन अगर तुम घायल सांप जैसे एक्टिंग करोगे तो फिर हमको भी मालूम है क्या करना है। অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তান আর পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিতে পারবে না বললেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ তথা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল दिनेश नाइन। देखिए, 2 दशकों से लगभग पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की एक बोगी की आड़ में आतंकवादियों के माध्यम से आउटसोर्स करके हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म कराना। पिछले 2 दशक में जब भी कोई लड़ाई की बात होती थी, ये अपना न्यूक्लियर बॉगी शुरू कर देता था, न्यूक्लियर की धमकी देना शुरू कर देता था। लेकिन इस बार भारत ने इसकी उस न्यूक्लियर धमकी को बिल्कुल धराशायी कर दिया। जिस प्रकार से जो भी एक्शन अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है,
इनके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान को ये बिल्कुल क्लियर होगा कि अगली बार अगर ऐसी कोई भी हिमाकत की, कोई टेररिज्म फैलाने की कोशिश की, तो शायद सबसे पहले आपके न्यूक्लियर बॉगी को ही खत्म करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ही खत्म करेंगे। देखिए, पहलगाम के अंदर जो बर्बरता के साथ में इन्होंने हमारे टूरिस्ट को मारा, उसके बाद भारत एक्शन में आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे के पूरे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको बड़ी बारीकी से देखा गया। इंफॉर्मेशन आ गई थी कि कौन कौन से कैंप इन्होंने खाली किए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए फिर 9 कैंप और जो थे इनके ट्रेनिंग कैंप्स या इनके जो आकाओं के जो 5 स्टार महल है, वो चाहे वो भावलपुर में था, मुहिदके में था या वो मुजफ्फराबाद में था, सब के सब कैंप को बिल्कुल भारत ने चिन्हित किया और उसके बाद 100 से भी ज्यादा इन आतंकवादियों को झन्नू पहुंचा दी। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉगी के तहत यह मान के चल रहा था जैसे उसके पास लाइसेंस है टेररिज्म करने का। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज है, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो एक डेटरेंट माना जा सकता है, क्योंकि हम फायर करेंगे तो पहली बार नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास तो कोई न्यूक्लियर पॉलिसी है ही नहीं। वो तो हर एक्शन के ऊपर, चाहे कोई भी बातचीत हो जाए, न्यूक्लियर धमकी देता है। ऐसे इरेशनल और इररिस्पॉन्सिबल देश को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो उसका दिमाग ठिकाने लगाया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी अकल ठिकाने आ जानी चाहिए। ভারত পাক যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে এগিয়ে এসেছে তার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো যেভাবে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে তাতে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছিল। উভয় পক্ষই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো পারমাণবিক সমস্যা। রাওয়ালপিন্ডিতে একটি নির্দিষ্ট বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা, যা পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিল। ফলে উদ্বিগ্ন ছিল মার্কিন সরকার। সেজন্য দুদেশকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জানাচ্ছেন ওয়াশিংটন ডিসির বিশ্লেষক মাইকেল কাগলম্যান। The reason why the nuclear issue was a big factor in this crisis was because the level of conventional military hostilities was increasing to levels that we've not seen for so long. And because of that, because the two sides were climbing up so high on the escalation ladder, invariably because these two countries had nuclear weapons, there would be growing concerns about the risk of escalation to nuclear levels. I had no reason to think that there was any contemplation of any type of decision related to nuclear weapons. And I should say this as well, it's not unusual to hear this type of saber rattling from the Pakistani side, sort of boasting about Pakistan's nuclear capacities, signaling this idea that there is a risk of nuclear conflict. I think that's partly done for a global audience, to try to get the attention of the world, to try to inspire it to pay more attention to the crisis and to try to pressure India to rein things in, so to speak. I certainly think that was the case with this crisis, and I think that's been the case in the past. And if that's true, it worked, because indeed, I think it's quite clear that the two main U.S. officials leading the U.S. response in this crisis, Vance and Rubio, they were both, I think, provoked by the need to be more involved once they started to fear possible nuclear escalation risk. हमने जवाब में 11 पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस का धुआं उड़ा दिया। सरगोदा में जो है बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, रावलपिंडी में बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, और रहीम यार खान वगैरह नॉर्थ से साउथ हमने 11 एयर बेस हिला के रख दिए हैं, झिंझोड़ के रख दिए हैं। ठीक है, 4 रेडार स्टेशन जो हैं वो शूट डाउन हो गए हैं, 4 रेडार स्टेशन शूट डाउन हो गए हैं, ब्लास्ट हो गए हैं मतलब। ठीक है, और पाकिस्तान के कोई 8 JF-17, ये ओपन सोर्सेज से मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 JF-17 फाइटर, एक F-16, एक
आपका J-10C और एक एवैक ये उड़ा दिया गया है आसमान से, ठीक है। फिर पाकिस्तान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमारे जो मिसाइल ने सरगोदा में हिट किया था, इतना बड़ा फ्लैश हुआ था, हम भी सोच रहे थे ये हुआ क्या है, कुछ ऑर्डिनेंस गई है, लेकिन इतनी बड़ी जबरदस्त ऑर्डिनेंस लगती है। तो एक अटकल लगाई जा रही है कि उनकी वहां पे टनल थी जहां उन्होंने 7 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर किए हुए थे। इसी वॉरहेड में क्या होता है कि यूरेनियम के 2 मासेस होते हैं और चारों तरफ एमिनेशन का रिंग, वो एक्सप्लोजिव का रिंग होता है। जब उसको चलाना होता है तो एक्सप्लोजिव रिंग फायर किया जाता है और वो इस तरह इम्प्लोड करता है और दोनों मास मिलाते हैं तो क्रिटिकल मास बन जाता है, राइट। बहुत ज़रूरी है जो मैं कह रहा हूँ, क्रिटिकल मास बन जाता है, ठीक है। और क्रिटिकल मास फटने से, बनने से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। जब वो नहीं फायर किया होता है, ऐसे पड़ा होता है, तो उससे एक कुक ऑफ हो जाता है, उससे बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिसमें वो सारा जो यूरेनियम जो अलग अलग है वो फट जाता है और उसका जो जैसा वो फ्लैश निकला था वो ऐसा निकलता है। इसका मतलब अगर ये सच है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो 7 थे वहाँ पे उस टनल में स्टोर्ड न्यूक्लियर हथियार 5 से 6 तो गए और वहाँ रेडियो एक्टिविटी फैल गई है, वहाँ तो आसपास जाना मुश्किल होगा, वो टनल तो बंद, कंक्रीट लगा के सील करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक अटैक चगाई में हुआ था, वहाँ भी लगता है इनकी वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड इनका न्यूक्लियर वॉरहेड्स हिट हुए हैं। तभी तो ये दौड़े गए थे जेडी अपना अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, उनके पास दौड़े, मार्को रूबियो के पास दौड़े गए कि बचाओ मेरे आका, पाँव लागी बोलिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कि हमारी निजात कराएं, हमें बचाएं, हमें छोड़वाएं। শনিবার দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ঘোষণা করা হয়। তারপর সোমবার ভারতের 32টি বিমানবন্দর খুলে দেওয়া হয় যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে, যা 9 মে থেকে বন্ধ ছিল। এই আবহে জম্মু কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় খুলতে শুরু করেছে দোকানপাট। बहुत रिलीफ है। हम तो परेशान हो गए कि कैसे हम बाहर जाए। हम भी सोच रहे थे यहाँ का जो अभी रोड मैनेजमेंट भी अभी ठीक नहीं है। एयरपोर्ट खोलना ये एक बड़ी इनिशिएटिव है कल से। अब चाहते ही हम, मैं कॉमन इंसान हूँ, हमारा उठना बैठना श्रीनगर में भी है, दिल्ली में भी है, तो हम सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं इतना परेशान था कि अगर कोई मुझे कहता 20,000 की भी टिकट ले लो तो मैं लेने के लिए तैयार था। तो हम चाहते हैं, शुक्र ऊपर वाले का, कि ये हो गया, सीज फायर बंद हो गया दोनों कंट्री में, तो ये एक अच्छा स्टेप है दोनों गवर्नमेंट की ओर से। जी, हम तो चाहते ही है, क्योंकि हमारा टूरिज्म जो कश्मीर है ये इसी पे डिपेंड है। हम चाहते हैं बाहर वाले आए, हमारी हॉस्पिटलिटी को कश्मीरी को समझ जाए। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये एक कश्मीर के लिए बहुत एक अच्छा विजन है कि हमारा सारा काम जो है टूरिस्ट के साथ है। हम चाहते हैं टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए यहाँ पे। जी, मेरा नाम फिरदौस है। आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि हमारे दिल में कितनी खुशी है, क्योंकि ये हम 8 दिन से जानते हैं कि कैसा माहौल था। हम एक्चुअली 70% डिपेंडेंट एयरपोर्ट मार्केट से ही है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली जो रेजिडेंशियल एरिया है वो गोगो है, और रात के जो पटाखे बजते थे, गोले चलते थे, ये हम जानते हैं कि हमने अपनी फैमिलीज को कैसे सेव किया है। ये हमें पता है कि हमने 8 दिन कैसे निकाले। हम सोए नहीं 8 दिन से। कल से जब ये परसों से जब ये अनाउंसमेंट हो गया कि सीज फायर हो गया, आप यकीन ही नहीं कर सके कि हमारे दिल में कितनी खुशियां है। हमारे बच्चे खुश हो गए, हम सब खुश हो गए। सर, ये कैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल होगा तो हमें लगेगा कि पूरा कश्मीर जो है वो ऑपरेशनल हो गया, पूरा कश्मीर खुल गया है, क्योंकि एयरपोर्ट एक मेन चीज होती है हर एक स्टेट की, हर एक लोकेशन की। तो इससे बड़ी ज्यादा हमारे पास क्या खुशी हो सकती है। टूरिज्म आएगा, हम भी बाहर जा सकते हैं, बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। टूरिस्टों के लिए हमेशा जगह मोस्ट वेलकम था, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम रहेगा।
ये हमारी कश्मीरियत है, हमारी इंसानियत है। भले ही अदर स्टेट्स में क्या होता होगा, लेकिन मैं जहां तक पूरा इंडिया में भी घूमा हूं, आज तक मैं हर किसी जगह पे सर उठा के चला हूं और सर उठा के चलूंगा। हम कल से बहुत खुश हैं, एयरपोर्ट के साथ रहते हैं। हमारे घर में कोई नहीं होता था, जब रात को कुछ होते थे हम सब भाग जाते थे, हमारा घर खाली पूरे थे। ये हम जानते हैं इन दुनिया में हमारा क्या हाल हुआ है, ये खुदा ही जानता है। और हम आज बहुत खुश है, कल से एयरपोर्ट खुलेगा, हाजी लोग भी जाएंगे, ये हाजी साहब भी जाएंगे, हम बहुत खुश हैं। बहुत दिक्कत हुआ था, डर भी लगा था, फायरिंग वायरिंग का भी आवाज आते थे। तो अभी आज से दुकान खुल गई है और बाकी अब ठीक ही रहेंगे। अब आगे कितना अच्छा जो अभी ऐलान हुआ कल से एयरपोर्ट। हाँ, कल से ऐलान हुआ है कि कल एयरपोर्ट खुलेंगे, तो खुशी की बात है और उसे आने जाना लगा रहेगा। नहीं तो यहाँ कोई भी नहीं आ रहा था अभी तक। अब आगे देखते हैं कितना, चूंकि ये एयरपोर्ट वाला इलाका है, ज्यादा लोगों पर विजिटर्स जब आते हैं उसी पर। यहाँ तो बहुत सारे आदमी भाग भी गए थे मकान उकान छोड़ के जब फायरिंग का हुआ था, लेकिन अभी सब ठीक है, वापस भी आ रहे हैं। कितनी उम्मीद करेंगे कल से काम दोबारा होगा, लोग आएंगे बाहर से लोग? बिल्कुल, अब तो चलेगा ही अच्छा तरह से, फिर से खुशी वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। সব মিলিয়ে একদিকে যেমন দেশবাসী বলছেন পাকিস্তানের কুকর্মের সাজা পাওয়া উচিত, আবার অন্যদিকে নিয়মিত গোলাগুলিতে সর্বহারা সীমান্তের বাসিন্দারা দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাইছেন তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।